Hello guys, welcome to my channel. So this is the part 2 of the AutoCAD series lecture. In the previous video we discussed about how to download the AutoCAD software from its website. So in the second video we'll see the basics of this software. So as you can see, I have already opened it. This is the first window it comes. So here option is there, start drawing, listen drawings. I have drawn some drawings previously. Okay, so leave it. We'll see the basics first. Okay, only the basics about this toolbar and all, everything. Some drawings we will do, drawing tools. Okay, so here you can see option is there, new, open, DWG converter, open option is the new option is there. So we'll first what we'll do, go to new, click, and so as you click the new option, there are some templates which will come here. AutoCAD 3D, AutoCAD will select this one, ACAD or AutoCAD. Okay, open. So this window comes here. Here you can do whatever drawing you want. Okay, so this is the, here this toolbar is there. Okay, so in this option you can see save, savers, import, all these things are there. Here also new, open, save, savers, and this one open from web or mobile, save to mobile, print. How do you do this option? I want to tell you about this customize quick access toolbar. As we will start doing from the drafting in 2D design. So first thing what we have to do, we have to switch from 3D to 2D. As you can see here, these all are 3D designs, extrude, options of 3D design, box, extrude, all these things. So first thing what we can do, we can switch it here from go to workspace. Okay, and then I have added this option workspace here, you can see. So here option is there, drafting, annotation, 3D basics, 3D modeling. Okay, so click drafting and annotation. So now you can see here option is there, drawing tools, modify tools, annotation, layers, block, properties of the lines and the things, layers. All those things we'll cover in the upcoming videos. Okay, all those things are important, very much important. So firstly we'll check about drawing. Okay, drawing tools. So to understand better understanding, I am pulling it out. Don't worry if it comes out, you can put it back by clicking this window, return panels back to ribbon. Okay, you can pull it here and use it. So first thing we'll see about line, polyline, circle, arc, all these things. Okay, basic things why I am telling, because from the basic things only you will be able to draw complex thing. बेसिक ही पता नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, क्या है, तो कॉम्प्लेक्स क्या ही करेंगे. तो स्लोली हमको जाना है, पहले बेसिक्स सीखना है. ठीक है, फॉलो करो एक एक करके वीडियो, और जो बोलता हूँ वो प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है, फाइनली यू विल बी एबल टू ड्रॉ द परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो फर्स्ट वी विल सी द लाइन. ओके, द फर्स्ट लाइन, द सेकेंड लाइन, first point, second point. So here you can see it is coming in angle. So what I can do, I can click here, so only it will come in orthogonally in 90 degree. Okay, that option we'll see. So this is the status bar. Here you can see grid option, display grids, snap on grids. Okay, this option restrict cursor orthogonally. This restricts the cursor orthogonally. Okay, so again I am drawing, see line, this is coming straight. If I switch it off, I can tilt it. Okay, so switch on 0 degree, then 90 degree, then 180 degree, then again 90 degree, 360 degree. Okay, so 0 degree. So this is the first point, second point, then escape. Okay, if you are on desktop, first point, second point, escape. Okay, so again I have to delete this. What you can do, I can select it and delete. You can delete it, or I can select it and E, enter or space, gone. Otherwise select it, E, space. So there are two ways for doing it.
One way is to click here and start doing it. Another way is to enter the command. There in AutoCAD there are commands like line command, circle command, there are many commands. Everything you can do through commands. Okay, not full command also, only the first letter of the command you can use, like in some cases in line. So here it is coming L line, so the command is L. Click here, otherwise just L, enter or space. Okay, so you can understand here line, so L, enter. Okay, so first point, second point. So this is the polyline. Polyline option is there, only it is going in orthogonally, as I have switched on the ortho. If I switched it off, then it can go like this. Okay, so polyline and line is over. Now let's go to circle. Circle, specify center point of circle. The first thing, after clicking, you can check here this option, specify center point for circle. Okay, this one, because from this you can see what the AutoCAD is telling you, what the AutoCAD software is telling you, so you can follow it here and do easily, no problem. So center point अभी हमको specify करना है, तो first click anywhere wherever you want. Okay, suppose I want to click here, center point. Now slowly move your mouse cursor. See, let me turn on the ortho again. Now keep it here. Okay, so again next thing what you can do, dimension. You can do the dimensioning of the AutoCAD. So here this is the circle. Dimensioning of the circle, we have to do diameter, radius, arc, all these things are there. So we can choose diameter, and this. There is also another option, radius, that we also can use radius, and this. Okay, here you can see diameter option is there, radius option R it is showing. For diameter symbol is there here, but this is so small I cannot see it properly. So for properly checking it, what we can do, dimension style option is there. For that, what we can do, we can use the command D space. Okay, modify, and then here you can see text ID is there, 0.18 is there. Let me increase it to 2, and symbol and arrows also we have to increase to 2. Okay, close. So here you can see we have increased the text size, but it is too big, so we have to reduce it. So you can go D, modify, arrow size, we can make it 0.5, text 0.5. okay. So it is a dimension style tool manager. From this we can change the dimensions, properties, size, all those things. We'll come to this later. Okay, now the close. Okay, so यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे डायमेंशन अभी, और ये ड्राइंग के साथ अभी अच्छा लग रहा है. अभी यहाँ पे डेसिमल के बाद पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करते हैं. मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स, इसको थोड़ा 0.00 तक ही रखते हैं. ठीक है, अभी हो गया. So again I will do it here. Let's see, circle, first specify center point of circle, and then increase the, here it is whatever you are showing in the dynamics here, because here you can see the dimension is changing, 5, 6, 10. Okay, whatever you want to give, enter the dimension from the number keyboard, suppose 10. Okay, so 10 what, 10 millimeter, centimeter, inch, what is the 10? So what we can do, we can go, can click another option is there, units. Okay, units, enter. So here you can see decimal, inches,
inches. If you want to change it to millimeters, generally people in India are using millimeter. Inches is generally used in US, so we will change it to millimeters. So millimeters. Okay, so now you can check dimension 20. Now it is coming perfectly, isn't it? 20. So if you want to, it is the radius it is showing. So if you want to see the diameter, here this is the diameter it is showing, and sorry, radius, here the radius. Okay, now let's go for arc. Let's see what we can learn from that. Arc option is there. Click on the arc option. So what it is showing is, specify start point of arc, start point, specify second point of the arc, second point, click off the ortho, second point. Then as you can see, the arc is already formed. Specify end point of the arc. Now we have to specify the end point. हो गया, एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। तो अभी इस जो आर्क हमने ड्रॉ किया, उस आर्क का रेडियस कितना है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से आप रेडियस क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, रेडियस कितना है, ठीक है। डायमीटर कितना है, डायमीटर भी पता चल सकता है आपको यहाँ से, ठीक है। आर्क लेंथ भी आपको जान सकते हैं यहाँ पे। आप मिडिल माउस बटन दबा के यहाँ पे नीचे करेंगे तो पैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आर्क लेंथ आपको मिल जाएगा 57.30 mm. Okay, it's very important to know the units. Okay, so let's do it again. This time we'll specify the arc length from the starting. Arc first point, specify second point of the arc. Here you can see, okay, center point. Okay, here I can change the, if you want, here. Okay, the arc length is this, the radius is this, and the diameter is this. Okay. Okay, so मैं कुछ चेंज कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, छोड़िए। सो दिस इज द ऑप्शन। ओके, सो लेट्स गो टू another drawing tool, that is rectangle, first point, second point. This is over. Okay, dimensioning, you can see, click here, first dimension, you can choose as linear dimension, first point, second point. Okay, then first point, second point. Okay, in the third point, suppose I'll snap mode off. Select first point, second point. All the dimensions we can see, but we want to increase the size, so the same thing we can do. D space, okay, again D space, then modify, then arrow size increase to 0.8, text size we can increase to 0.8 plus, okay, then close, so it is increased little bit. Okay, and so rectangle, and this is the very interesting option, polygon. Okay, this one is, you see, polygon. Select the polygon, then enter number of sides. So you want a hexagon, octagon, a rectangle, triangle, whatever you want, you can do it. Suppose, let's say I want to draw a triangle, so enter number of sides. Center of the polygon, this one, inscribed in circle. You see, 3 sides are coming already. Specify radius of the circle. Is inscribed in the circle means it is all inside the circle. Okay, so we need to specify the radius. Radius कितना चाहिए हमको? Suppose 20 mm इसका radius है. Enter. Okay. Here.
आ गया। और एक बार देखते हैं पॉलीगन, क्लिक करना है आपको, सेंटर पॉइंट, नंबर ऑफ साइड सिलेक्ट करना है। सपोज हमको हेक्सागन चाहिए 6, ओके। सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलीगन सिलेक्ट करना है, देन इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड ओवर द सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब सर्कल के अंदर है, सर्कमस्क्राइब्ड ओवर द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर है, सर्कल अंदर है, ठीक है। तो हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लेते हैं फिर से, और अभी देख रहे हैं यहाँ पे हेक्सागन आ गया। तो स्पेसिफाई रेडियस हमको देखना, देखिए ये जो साइज़ आ रहा है यहाँ पे रेडियस हम दे सकते हैं। तो रेडियस हमको सपोज देते हैं फिर से 20 देते हैं रेडियस, ठीक है। एंटर करते हैं, अभी बन गया हमारा हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, 6 साइड से, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, मेज़र करते हैं। मेज़र करते हैं, हमने 20 दिया, 20 आया कि कितना आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 40 आ रहा है, ये देखिए 40 शोर कर रहा है, इसका मतलब ये जो है तो हमारा मतलब 20 है इसका, ठीक है। तो अभी ये हो गया, पॉलीगन हो गया। मैं आपको ये सब चीज़ें एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मतलब प्रैक्टिस एक से एक तो प्रैक्टिस होगा, दूसरे आप बेसिक चीज़ें समझ पाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बढ़ेगा, मतलब उसका एक्सपर्टीज़ बढ़ेगा सॉफ्टवेयर में। सो आप एक एक करके प्रैक्टिस करिए, एक एक वीडियो में जो बोल रहा हूँ वो करते रहिए, ड्राइंग टेल्स में आप परफेक्ट हो जाइए। उसके बाद हम डिफ़िकल्ट चीज़ों में जाएंगे, तो पहले बेसिक्स करिए, ठीक है। तो दूसरा में जाते हैं हम पहले, उसके बाद ये है एलिप्स में आ गए हम लोग अभी, ये है सेंटर एलिप्स। अब यहाँ पे कुछ देर अगर कर्सर को रखेंगे तो ये आपको ड्राइंग के साथ पूरा समझेगा। कोई भी चीज़ पे यहाँ पे आप रखिए कर्सर थोड़ा देर, तो ये आपको ड्राइंग दिखा देगा सर्कल। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बहुत मतलब बहुत हेल्प, मतलब यूज़र फ्रेंडली है ये 3 पॉइंट कुछ देर रखिए, ये 3 पॉइंट दिखा देगा। लाइन में मैं रखा, कुछ देर रखा, ये देखिए लाइन का भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पॉली लाइन कुछ देर रखा, पॉली लाइन का भी दिखा देगा, ये देखिए, ठीक है। तो एलिप्स में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एलिप्स स्पेसिफाइज सेंटर ऑफ एलिप्स, ये सेंटर हो गया। एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, यहाँ पे हमने एंड पॉइंट दे दिया, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ मैं, एंड पॉइंट दे दिया, ठीक है। अभी इसको देना है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस। हमको पता है एलिप्स में 2 एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस जो ये कि यहाँ से यहाँ रहता है, और एक इस तरफ रहता है माइनर एक्सिस। सो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ओके। सो माइनर एक्सिस अभी देते हैं, माइनर एक्सिस कितना चाहिए, सपोज 15 देते हैं, ठीक है। अभी मेजर एक्सिस हमने डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया, वो भी ऐसे भी दे सकते हैं एंटर करके, ठीक। तो अभी हो गया एक्सिस एलिप्स। इसमें दूसरे भी ऑप्शन है, एलिप्टिकल आर्क कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सब ऑप्शन आप खुद से देखिए, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है हैचिंग। हैचिंग आपने देखा होगा बहुत से ड्राइंग में ऐसा हैचिंग रहता है, अंदर में ऐसा 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 लाइन्स रहते हैं, ठीक है। ये देखिए फिल्स द एनक्लोज्ड एरिया स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट विद हैच पैटर्न। उसके लिए पहले तो आपको चाहिए एक एनक्लोज्ड सर्कल चाहिए, सबसे पहले एनक्लोज्ड सर्कल के अंदर हम हैच करते हैं, ठीक है। तो वो ये क्या होता है, जनरली ये कट सरफेस होता है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कट सरफेस के अंदर वहाँ पे क्या डिज़ाइन है, इसलिए ये होता है स्पेसिफाई पॉइंट इन द एरिया एनक्लोज्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द एनक्लोज्ड एरिया। तो इसके लिए हमको पहले तो जैसे मैं बोला आपको एनक्लोज्ड एरिया चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं हम, यहाँ पे लाइन्स दे सकते हैं। तो लेट्स डू फर्स्ट लाइन्स, ओके, हैचिंग। सो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, तो इसके अंदर ऑलरेडी बन गया। इसका दूसरा भी एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, इसका इनसाइड एरिया पिक पॉइंट्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए पिक पॉइंट्स, इसके अंदर मैं सिलेक्ट किया, तो इसके अंदर जा रहा हूँ तो ये हैच हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो इतना अच्छा हैच नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं हैचिंग पैटर्न, हमको क्या क्या चाहिए। ये देखिए अगर मैं बहुत ज़्यादा हो रहा है हैच, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और हैच एडिट, इसका ऑप्शन है हैच एडिट। तो अभी क्या करता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
ये पैटर्न, यहाँ पे बहुत से पैटर्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से पैटर्न आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा पैटर्न लेते हैं पहले, ओके। देन स्केल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको कम कर लेते हैं, 0.2 करते हैं, ठीक है। देन प्रीव्यू में देख सकते हैं कैसा आ रहा है, नहीं ये तो और ज़्यादा हो गया, सॉरी इसको इंक्रीज़ करना था, मैं कम कर लिया, 5 करते हैं। प्रीव्यू ये देखिए अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको और थोड़ा कम करते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। प्रीव्यू अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हैच का ऑप्शन है, ठीक है। पिक ए पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रिमूव बाउंड्री, रिक्रिएट बाउंड्री, ऑल दिस ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस है। आप जितना जितना सीखेंगे उतना उतना अच्छा आपको आएगा, ठीक है। तो ओके करते हैं इसको, ये बन गया हमारा हैच, ठीक है। मतलब बहुत से ड्राइंग्स में आप देखा होगा ऐसा ऑप्शंस रहता है, तो लोगों को पता नहीं चलता ये क्या है, कैसे इसको ड्राइंग करना है, क्या कि एक एक लाइन करना है या काटना है, क्या करना है, ठीक है। तो हैच आप बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सपोज मैं आप इसको डिलीट करता हूँ, तो ग्रेडियंट में जाते हैं, ग्रेडियंट, देन जैसे पहले किया था इंटरनल पॉइंट लेते हैं, कितना बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एस्केप या फिर एंटर कर लीजिए, चला जाएगा। ही फिर से चलते हैं, ठीक है। अभी तो इसको थोड़ा एडिट करते हैं, हैच एडिट स्पेस, सिलेक्ट और हैच ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट कीजिए, आ गया ये ऑप्शन आ गया। आपको कलर भी बदलना है तो बदल सकते हैं, मतलब कितना अच्छा है, देखिए कुछ भी चाहिए आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये कलर भी बदल गया। फिर से स्पेस करेंगे, दबाएंगे तो फिर से जो प्रीवियस कमांड है उसको पकड़ लेगा। रिपीट द प्रीवियस कमांड बाय प्रेसिंग स्पेस, अगेन मैं देखिए स्पेस दबाया, फिर से आ गया, इसको सिलेक्ट किया, आ गया। तो इसको लाल कर देते हैं, थोड़ा अलग कलर करते हैं, रेड सिलेक्ट हो गया, अभी देखिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, एंगल भी यहाँ पे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू देखते हैं, ऐसा लग रहा है, मस्त लग रहा है, तो इसको ओके, बन गया हमारा हैच ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आपको ट्राई कीजिएगा। बाउंड्री क्रिएट्स ए रीजन और पॉलीलाइन फ्रॉम द इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। तो क्लोज हैच क्रिएशन, तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन डिलीट, और ई इरेज ऑप्शन है, इरेज का कमांड है ई, देन एंटर और स्पेस, ठीक है। तो हैच हट गया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन ये एंटर, ठीक है। मैं आपको एनकरेज करूँगा थोड़ा आप कमेंट्स को सीखिए, तो कमेंट्स जितना आप सीखेंगे उतना फास्टली आप काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब तो था आज का ड्राइंग टूल्स, और भी है इसमें, ठीक है। स्प्लाइन है, तो स्प्लाइन एक दिखा देता हूँ, स्प्लाइन, ठीक है। तो स्प्लाइन ये देखिए ऐसा एक, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइंस नहीं है, जैसे पॉलीलाइन जैसे स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट नहीं है। हम इसको जनरली इनक्लोज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एस्केप दबाएंगे तो सॉरी चला गया, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो स्पेस दबाएंगे, एस्केप दबाएंगे तो ये चला जाएगा, स्पेस दबाएंगे मतलब रह जाएगा, स्पेस या फिर एंटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं छोड़ दिए थे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन, फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए सिलेक्ट स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, इसको तो हमको 90 डिग्री में चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा 90 डिग्री देखने से अच्छा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर दीजिए, 90 डिग्री में ही टर्न होगा, तो 0 डिग्री 90 डिग्री हमको डायरेक्टली रेफरेंस लाइन मिल गया, ठीक है। तो जनरली इसको रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन, इट्स अ लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ओके। देन व्हाट इज दिस इज ए रे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, देन दिस गोज दिस वे, ओके। दिस इज दैट मच वी आर नॉट यूजिंग, ओके। मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड, ऑल दिस थिंग्स विल सी लेटर, क्योंकि यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसको डिलीट करना है, सब डिलीट करना है, तो कंट्रोल ए डिलीट, ओके। सो तो हमने देखा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, पॉलीगॉन, एलिप्स, हैच एंड स्प्लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑल दिस थिंग्स,
ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये स्नैप है, स्नैप बाद में बताऊँगा आपको। ये ऑर्थो है जो कि आपको लाइन को स्ट्रेट रखता है, मतलब 90 डिग्री या 180 डिग्री में ओनली वो टर्न करता है, ठीक है। एंगल्स है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो स्पेसिफाइड एंगल, ठीक है। ये सब चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में सीखेंगे। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग क्या है, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप एक के बाद एक वीडियो का मतलब कंटिन्यू करते रहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए। ये लॉकडाउन के अंदर मैं गारंटी देता हूँ आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर अच्छे से सीख जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।